हम सब की प्रेरणा के स्रोत योग, आयुर्वेद व वैदिक संस्कृति को जन जन तक ले जाने वाले ऋषि परंपरा के अनुगामी श्रद्धेय योग ऋषि युग दृष्टा पूज्य स्वामी जी को सब ह्यूस्टन वासियों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। Although born in a farmer family in a small village in Haryana, Pujya Swamiji propagated Yoga, Ayurveda, Vedic Sanskriti to the masses. Today, Yoga and Ayurveda has become the lifestyle of millions of people. Yoga is a scientific, universal and secular practice. Swamiji says that all Hindus, Muslims, Sikhs or Christians have the same anatomy and physiology. Then they all benefit the same from yoga. Swamiji doesn't change anyone's religion, but make them a better person, better human being. We are so fortunate today. Real Ganges from Haridwar has come to Houston to clean us from inside and give us the everlasting inner peace. स्वामी जी, आप हमारे लिए महातीर्थ हैं, and I bow to the divine soul. Honorable Judge Ed Emmets is very well known to the Indo-American community. He has visited India quite many times, very frequently, and he knows the fabric of India and Indian culture. He is part of our family. I request Honorable Judge to make a brief remarks. Swamiji, you honor us with your presence. We thank you for taking the time to come here. We've lit these lamps, and what did we do? We provided a bit of warmth. We provided a little bit of light. But Swamiji is here tonight to provide all of us with a little bit of knowledge, a little bit of wisdom. What's the result of that? The world will be a better place. But it will only be a better place. It will only be a better place if you take his words and his thoughts and his wisdom and his knowledge out of this room with you. Swamiji, thank you so very much for blessing us this evening. We're honored. Pujya Swamiji met Dr. John Mendelsohn during his first visit to Houston in July 2008 in reference to the research on yoga and Ayurveda between the two organizations. Integrative medicine has been introduced to almost all the hospitals in United States, and it's a supplement to the treatment. In a true sense, Swamiji and Dr. Mendelsohn are real scientists and real yogis, as they give the lot of people a very good health and a very good life. I request Dr. Mendelsohn to say a few words. Thank you. Thank you so much. It's a special honor. The things I remember about India are the diversity and the excitement of the culture and the philosophy, which is welcoming everyone. Now tonight we have a very special speaker. I just need to remind you that he's first of all a teacher of yogi, a teacher in classes, a teacher on television, a teacher in a school that he runs. He is an entrepreneur who has set up the finest and largest pharmaceutical company in the world, producing natural products. He's a politician. He had a great deal to do with the current Prime Minister Modi, and he preaches nationalism for India. And finally, I agree, he's been asked to start a new university
near Delhi, which I know with his leadership will become one of the major top universities on the planet. So welcome, Swami Ramdev. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पहले हम थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे और उसके बाद जीवन के साथ जुड़े हुए इस जगत के विभिन्न जो पहलू हैं उनके ऊपर प्रामाणिकता के साथ कुछ विचार करेंगे। थोड़ी देर लंबा गहरा श्वास भरते हैं। ऐसे 5 seconds में ब्रीद इन, 5 seconds ब्रीद आउट। ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, आरोग्य के लिए भी अध्यात्म के लिए भी। पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से, शुभ से, दिव्यता से भर जाता है। ऐसे 5 मिनट ये करना है। दूसरा कपालभाति प्राणायाम। बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए बहुत जरूरी है। डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ड्रग एंड वायलेंस फ्री, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ के लिए कपालभाति प्राणायाम। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे हम प्राणायाम करना प्रारंभ करते हैं तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। कनेक्टिविटी विद डिवाइन नॉलेज, कनेक्टिविटी विद डिवाइन पावर, कनेक्टिविटी विद डिवाइन गॉड।
achievement of life divine. This is called yoga. जैसे हम ये प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी अप हो जाती है, हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस में आ जाते हैं। हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है हम अपने सेल्फ में नहीं होते। वी आर ऑल कंप्लीट इन अवर सेल्फ। हम अपने भीतर अपूर्णता, अल्पता, न्यूनता, अधूरापन, कमी महसूस करते और उस कमी को हम पावर, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, materialistic pleasure, relationship and different type of success के द्वारा हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ये पावर, ये प्रॉस्पेरिटी, ये नेम, फेम, ये materialistic pleasure, ये relationship and success, these are the byproduct of our life. हम अपने आप में पूर्ण हैं और हम जैसे ही पूर्ण आत्मा सबके भीतर है। बस अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, पूर्ण विवेक, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण निष्ठा से कर्म को अपना धर्म मान के, भगवान की पूजा मान के करना है। ये है जीवन। तो प्राणायाम करने से अपने आप इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जहां पर जीवन का सत्य हमें ठीक ठीक अनुभव में आता है। तो ये 5 से 10 मिनट प्राणायाम मेडिटेशन से पहले जरूर करना है। 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो मेडिटेशन तो अपने आप हो जाएगा। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करना। बाह्य प्राणायाम थोड़ा सा कठिन होगा उनके लिए जिनका अभी थोड़ा अभ्यास नहीं है, तो कर सकते हैं। अग्निसार, ब्रेथ को एक्सेल करके उसका उभार होल्ड कर देते हैं, पेट को खींचते ढीला छोड़ते हैं। प्रैक्टिस के बाद तो आपका फिर नौली क्रिया का भी अभ्यास हो जाता है। थोड़ा प्रारंभ में आपको कठिनाई होगी, प्रैक्टिस के बाद आप भी कर सकेंगे। खैर, गले और थायराइड के लिए उज्जाई बहुत जरूरी है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों को जगाने के लिए कपालभाति, थायराइड, पैराथायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए उज्जाई बहुत अच्छा है। First contact your throat, then inhale the breath with sound, then hold the breath for some time inside.
यथाशक्ति रोकने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को एक्सहेल करना है। ऐसे 3 to 5 टाइम्स इसको ऊंचाई को करना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स का कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। वो सारी नस नाड़ियाँ, सारा आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारा शुद्ध हो जाता है अनुलोम विलोम से। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इससे बीपी तो क्योर हो जाता है। यू कैन कंट्रोल और यू कैन क्योर योर हाइपरटेंशन थ्रू दिस प्रैक्टिस। दिस इज वेरी यूजफुल इन SLMS and autoimmune diseases. Through this Anuloma Viloma breathing practice, you can cure your paralysis, epilepsy, and acute depression. इतना जबरदस्त है, अपने आप ही मन शांत हो जाता है। 5 मिनट आप कंटिन्यू करें इसको। Do this 5 minutes continuously. और आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। 5 seconds breathe in, 5 seconds breathe out. और डीप जाने पर आप 10 seconds breathe in, 10 seconds breathe out. धीरे धीरे और डीप एंड डीप और आप जाते जाएंगे। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। बॉडी के लिए तो बेनिफिट होगा, बियॉन्ड बॉडी जो योगा बेनिफिट है वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ऐसे नाद होता है। 3 टाइम्स हम करके भी देखते हैं तो अभी अपने को शांति की अनुभूति होती है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाएंगे। कंप्लीट साइलेंस। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। अपने हायर कॉन्शियस से, डिवाइन कॉन्शियस से, अपने सेल्फ से जुड़ना, अपने भीतर पूर्णता को अनुभव करना। भगवान पूर्ण है तो उनकी सारी रचना भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वयं में पूर्णता की अनुभूति, समष्टि में पूर्णता और दिव्यता की अनुभूति। भगवान पूर्ण है, मैं भी पूर्ण। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब कुछ पूर्ण है। अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने स्वरूप में सब कुछ पूर्ण है। ज्ञानमय है, सुखमय है, शांतिमय है। ऐसे 5 मिनट रोज मेडिटेशन करना, कम से कम। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, आंखों को रखना, आंखों को खोलना। अभी हम आपसे ध्यान के संदर्भ में कुछ अनुभवों को बांटेंगे। ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी दिव्यता में जीना, अपनी दिव्यता को अनुभव करना। एक सत्य को कई तरह से कहा जाता है, उसी को बोलते हैं एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। तो मेरे साथ बोलेंगे, अपनी दिव्यता में, पूर्णता में, ज्ञानमय, पुरुषार्थमय, प्रेममय अवस्था में जीना या इसको अनुभव करना, यही योग है, ध्यान व समाधि है। अब इस बात की व्याख्या 4 वेदों में है, 11 उपनिषदों में है। ईश के इनकट मुंडुक, मुंडुक के छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, इन 6 दर्शनों में इसी सत्य का वर्णन है। अपनी दिव्यता को, अपनी पूर्णता को, अपने पूर्ण विवेकमय, पूर्ण निष्ठामय, पूर्ण पुरुषार्थमय स्वरूप को अनुभव करना, यही योग, ध्यान, समाधि जो हमारा है अपना। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो हमारा अपना स्वरूप है उसको अनुभव करना, यही योग, ध्यान, समाधि है। और जो अपने भीतर है उसी को सब में अनुभव करना, यही। एक है व्यष्टिगत ध्यान, एक है समष्टिगत ध्यान, एक है एकांतिक ध्यान, एक है समष्टिगत ध्यान। जो अपने में है वही सब में है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस। जो मुझ में है वही सब में है। गॉड इज एवरीवेयर, सोल इज एवरीवेयर, एंड 5 एलिमेंट्स आर एवरीवेयर। So 5 elements are equal, soul is equal,
and one and super soul. God is one and equal. एक ही है. This is equality. This is oneness. तो इसको you feel everywhere the oneness. This is spirituality. एक आत्मा, एक परमात्मा और एक ही जैसी प्रकृति सर्वत्र है. ये नाना रूप तो उसी के ही हैं. मृत्योः स मृत्युम आपनोति ये नाना इह पश्यति. एकत्वम अनुपश्यत यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत. दिस इज वननेस. And oneness is coexistence. Coexistence and oneness, these are not two things. Oneness and coexistence, this is equal. And oneness, coexistence and brotherhood, this is एक ही बात को तीन तरह से कहा जा रहा है. Oneness, coexistence and brotherhood. इसी को हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व. और मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं. आप भी एक्सपीरियंस कीजिए और सभी ऐसा एक्सपीरियंस करें तो वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा.